ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے. کسی کا لون ہو, کسی کا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن, میں ہوں آپ کا میزبان سلیم قادری. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کل سے جو لاک ڈاؤن جو چل رہا تھا اس کی جو ان لاکنگ پروسیس ہے وہ کل سے شروع کی گئی, اور پورے جو جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں ہیں وہاں پہ جو ہے ان لاکنگ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس سلسلے میں سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایشو کیے گئے, چاہے وہ شاپ کیپرس ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹرس ہو, چاہے وہ ہوٹل مالکان ہو, چاہے وہ اور کسی تجارت سے وابستہ, ان سبوں کے لیے جو ہے ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی. اور اسی سلسلے میں ہم اس وقت موجود ہے قصبے سوپور میں, جہاں پہ جو ٹاٹا سومو اونرز جو یہاں پہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو مانگیں ہیں یا ہماری جو گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جو جاری کی گئی اس میں ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کرایہ ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ہماری جو لائبلٹیز ہے, چاہے کسی کا لون ہو, کسی کا کچھ اور جو اس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی کام ہو, تو وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک اس ٹاٹا سومو جو اسٹینڈ ہے, جہاں تک اس اسٹینڈ کا تعلق ہے, یہاں سے ہر روز 200 سے 250 جو سوموز ہے وہ ہر ایک روٹ پہ چلتی ہے, چاہے وہ سری نگر کا روٹ ہو, چاہے وہ بانڈی پورہ کا روٹ ہو, چاہے وہ ایک اسپیشل جو انہوں نے یہاں سے ایک سروس شروع کی تھی آج سے کچھ سال پہلے, جو سوپور سے ڈائریکٹ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے جاتی ہے. اگر صبح کوئی پیشنٹ ہو یا کوئی اس کا جو اٹینڈنٹ ہے اس کو جلدی میں سورا پہنچنا ہوتا تو یہاں سے اس کی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو اس پیشے سے وابستہ جو لوگ ہیں یہ بھی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اس سے, اور ان کا بھی اپنا جو ہے اپنی جو عیال ہے وہ گھر میں شام کو ان کے گھر میں جو ہے چولہے جلتے ہیں, اور ساتھ میں ان کو اگر اور بھی کوئی کام ہو تو وہ بھی کرتے ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جب صبح یہاں سے نکلتے ہیں ہماری گاڑی میں جو ہے 5 جو پیسنجرز ہوتے ہیں جو مختلف روٹوں کو جاتے ہیں, لیکن راستے میں ان کو روکا جاتا ہے, چاہے وہ سرکار کی طرف سے جو قائم کیے گئے مجسٹریٹس جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, تعینات ہوتے ہیں, وہ ان کی طرف سے ان کو روکا جاتا ہے, اور ان کو فضول میں تنگ بھی کیا جاتا ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ماسک بغیر ماسک ہو, آپ کی ماسک نیچے کیوں ہیں, جو پیسنجرس ہیں آپ نے 5 وہاں سے یہاں اس سیٹ پہ رکھنے تھے, کبھی پیچھے رکھنا تھا, تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں ہم اس وقت موجود ہے یہاں پہ اسٹینڈ میں, اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے رشید صاحب جو یہاں کے ٹاٹا سومو اونرز کے یہاں پہ زوما ہے, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے پوری جو وجہ ہے, اور آپ ہمیں بتائیے کہ جو وجہ ہے یہ کیا, کس وجہ سے یہ جو ہے پوری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی رشید صاحب آپ بتائیے اپنا نام تو بھی دیکھیے سلیم قادری صاحب, پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت مسرت کی بات ہے. ہم آپ کی چینل کی وساطت سے سرکار سے ریکویسٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم غریب متاثر لوگوں کو نظر انداز مت کریے, ہمیں بھی گائیڈ لائن میں شامل کریے. سر اگرچہ پورا ورلڈ کورونا مہاماری میں مبتلا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پچھلے سال سے ٹرانسپورٹ بہت ہی اس میں افیکٹو ہوا ہے. اگر پچھلے سال بھی ہم نے سرکار سے بنتی کی ہے کہ ہم مدد کے طلبگار ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹوکن ٹیکس میں بڑھوتری کی گئی ہے, ہمیں پرمٹ فیس میں بڑھوتری کی ہے, ہمیں انشورنس میں بڑھوتری کی گئی ہے, نہ کہ اس کے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملتا سرکار کی طرف سے. اور جو یہ نیا اس سال یہ کورونا وائرس دوسرا سٹپ آیا ہے, اس میں بھی ہم بہت شکار ہوئے, جس کی وجہ سے ہمارے ذہن, ہمارا اہل عیال بھوک مری کے شکار ہوئے ہیں. سر اس طرح بات ہے, مجھے ایک عرض ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ان گاڑیوں میں ہی کورونا وائرس ہے کہ اور جگہ بھی کورونا وائرس ہے. اگرچہ آپ سر سلیم صاحب آپ بینک میں دیکھو, وہ سرکار کا محکمہ ہے, سرکاری محکموں میں وہاں آپ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو, دیکھو کہ وہاں کہاں ہے سوشل ڈسٹینس, SOP کا پالن وہاں کہاں ہوتا ہے. اگرچہ جبکہ ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, ہم بغیر ماسک کسی پیسنجر کو بیٹھنے کی اجازت گاڑی میں نہیں دیتے ہیں, تو بغیر ماسک ہم کسی کو نہیں بٹھاتے ہیں. ہمیں گئے آپ بینک میں دیکھو وہاں لوگوں کی کتنی گیدرنگ رہتی ہے, کیا وہاں پہ کورونا وائرس نہیں ہے؟
आप वो देखो, वो मेला, किसान मेला लगता है सरकार की तरफ से, वहाँ देखो लोगों की कितनी गैदरिंग रहती है। क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है? एक यही है ट्रांसपोर्ट जहाँ से कोरोना, चाइना की तरह मतलब वुहान जैसा एक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से कोरोना ईजाद होता है। सर अब जबकि अब अनलॉक हुआ है, सरकार ने इस लोगों को रिलैक्सेशन दिए, ट्रेडर्स फेडरेशन को रिलैक्सेशन दिए, मुख्तलिफ लोगों को, एजेंसियों को रिलैक्सेशन देती है, लेकिन इसमें भी ट्रांसपोर्ट इसमें भी शिकार हुआ है, जिसकी वजह से हमारा आल आयाल ज़हनी शिकार हुए हैं। इसमें हमें गाइडलाइंस, हमें खाली यही कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंस, सोशल 50% आप सवारी भर दो, जबकि रेट के बारे में हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। इससे पहले हमें एक ऑर्डर मिला था आरटीओ साहब सोपोर की तरफ से, हमें पर किलोमीटर 22 रुपया 75 पैसा लेना था। उसके हिसाब से आरटीओ साहब के उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें डबल रेट बनती है। हमें पता नहीं, मुख्तलिफ एजेंसियाँ, जब हम 5 सवारी लेके कहीं जाते हैं तो मुख्तलिफ एजेंसियाँ बीच रोड में हमें जगह जगह सताते हैं। कहीं वो किराया का पूछते हैं तो उस पर चालान ठोकते हैं, उस पर जुर्माना करते हैं, कहीं पे गाड़ियाँ सीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बच्चे भूखमरी के शिकार हुए। इसलिए हम आपके चैनल की वसातत से सरकार से ये विनती करना चाहते हैं कि अगर आप वो गाइडलाइन, एक तो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोगों को कि इस तरह आप 50% सवारी बोलो, लेकिन ये रेट का भी हमें गाइडलाइन में मेंशन करिए, ताकि लोग भी गलत ज़हनी का शिकार न हो और हमारा चूल्हा भी थोड़ा बहुत चल सके। जी, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और यहाँ पे जोमा है, जनरल सेक्रेटरी जो यहाँ पे सोमो ओनर्स का है, इनसे भी हम मज़ीद जानने की कोशिश करें। पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले कई दहाइयों से ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं है। यहाँ के जैसे कि 2016 से लेकर आज तक हर साल 4-4 महीने 5-5 महीने ये ट्रांसपोर्ट बंद रहता है और बंद रहने के बावजूद भी हर एक डॉक्यूमेंट्स पे इसको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं। पिछले साल बहुत हमें ये आशा थी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें कोई रिलैक्सेशन मिले, खासकर टोकन टैक्स में, इंश्योरेंस में, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें 30 हज़ार, मतलब इंश्योरेंस में 30,000 से कम शायद नहीं होता है, 30,000 रुपये भरने पड़ते हैं। वो बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। और जो टोकन है ये हमारा 3,000 था, इसको डबल करके 6,000 कर दिया। जिस गाड़ी का 4,000 था उसका 8,000 हो गया, जिसको 4500 था उसको 9,000 हो गया। और ये इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ 30,000 से कम नहीं है और फुल इंश्योरेंस 32-33 हज़ार है। ये एक ट्रांसपोर्टर इतना मतलब ये गरीबी का शिकार हो गया है और कमतरी का शिकार हो गया है कि ये भरपाई नहीं कर पा रहा है। या तो इसको घर में कोई चीज़ बेचनी पड़ती है, कोई जेवरात बेचकर गाड़ी में इंश्योरेंस डालना पड़ता है, कागज़ करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से आज तक खासकर 2020 से जब से ये कोरोना वायरस शुरू हो गया है हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है, सिवाय एक ऑफ़र आई थी पता नहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से या किसी और की तरफ से, जिसमें हमारे ARTO साहब का बड़ा रोल है, ARTO मुबशिर साहब का बड़ा रोल है, जिसने 21 लाख रुपए, मतलब सुनने में आया है कि 21 लाख रुपए गवर्नमेंट से अपने अकाउंट में जमा कराए ट्रांसपोर्टरों के लिए, जिसमें हमें भी इस यूनियन को भी तकरीबन 1,90,000 रुपये तक 1,90,000 रुपये तक का रिलीफ मिला है। मगर इसमें चंद ड्राइवर आ गए, 64-65 ड्राइवर आ गए हैं यहाँ की। मुझे 200-250 ड्राइवर है और बाहर भी ड्राइवर है। मतलब हमारे सोपोर में अगर हम हिसाब करेंगे तकरीबन 2-2.5 हज़ार ड्राइवर है। 2-2.5 हज़ार ड्राइवर में से अगर 2.5 हज़ार को नहीं मिलेगा 2,000 को मिलना चाहिए, लेकिन 10-20 चंद आदमियों से मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसका भी हम शुक्रगुजार है कि इसने ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान देकर इतना कुछ करा, क्योंकि इसको 65 स्लॉट है, शायद 65 स्टैंड है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो 21 लाख में वो क्या कर पाएगा? 2-2 लाख रुपए हर एक स्टैंड को दे दिए हैं, तो चंद ड्राइवरों में वो तकसीम हो गए हैं। लेकिन वो खाली इंश्योरेंस कोई रिलैक्सेशन थी 3-3 हज़ार, यानी 30,000 के बजाय 3,000 रुपये। अगर डबल देखें तो डबल, उससे डबल कर दिया है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट का और न कोई रिलैक्सेशन। पिछले साल बोला कि
हाँ आप नंबर लिखाओ, अकाउंट नंबर लिखाओ, वो लिखा, ये लिखा, वगैरह वगैरह जमा कराए, मोहल्ले मोहल्ले में जमा कराए हैं, स्टैंड के अंदर हमने जमा कराए हैं, तहसील में जमा कराए हैं, बाकी जगह जमा कराए हैं, लेकिन किसी जगह से कोई रिलीफ नहीं मिला है। इतना मतलब इस कौम को इतना पशपुष्ट रखा है कि इसकी कोई सुनवाई है नहीं आज तक। और हम मजबूर होते हैं कि कभी कभार के हम क्या नाम है इसका, हम बंद करने पे मजबूर होते हैं कि जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं। गवर्नमेंट ने हमें 22 रुपये 73 पैसे हिसाब से रेट दिया है, क्योंकि ये कंट्रेक्ट का रेट है। अब इसमें 9 सवारी बैठेंगे, ये 22 रुपये 73 पैसे 9 सवारी में जमा होता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि 5 सवारी यहाँ भरो, ये 5 सवारियों का किराया भी 22 रुपये 73 पैसे के हिसाब से ही चार्ज हम पैसेंजर को देना है। बाकी मतलब यहाँ लोगों में गलत फहमियाँ है कि नहीं जी मैं कल 150 रुपये देता हूँ, आज 70 कैसे हो गया। उसको ये समझ मतलब उसके लिए मैं ये मतलब गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई रेट बढ़ा ही नहीं है, हम वही 22 रुपये 73 पैसे का पालन करके 5 सवारी में डिवाइड कर रहे हैं, न कि 9 सवारी, क्योंकि अगर 9 सवारी भरनी है तो सवारी को ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमें 5 सवारी का ऑर्डर मिला है, इसलिए हम 5 सवारियों को 22 रुपये 73 पैसे के हिसाब से रेट बना रहे हैं। जो इसका रेट बनता है 10 किलोमीटर का कितना बनता है, 20 किलोमीटर का कितना बनता है, 15 किलोमीटर का कितना बनता है। तो आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कम से कम लोगों को ये मतलब मैसेज दिया करो कि स्टेज करेज में क्या किराया है और कंट्रेक्ट करेज में क्या किराया है, और हमें मेहरबानी करके तंग ना करे। बाकी वसलम। इतना ही नहीं सलीम साहब, जैसे कि आपने सुना कि जो यहाँ पे जो हजरात है इनका यही कहना है कि कश्मीर में 2016 से आज तक कई बार जो ट्रांसपोर्टर है 4 महीने 5 महीने के लिए बंद करना पड़ा, और जिसके हवाले से मतलब इनका जैसे कि आपने इन जुम्माओं का सुना जो अपनी रुदात है इन्होंने सुनाई, उनका ये कहना है कि 2016 से आज तक कई बार जो ट्रांसपोर्ट का है 2 महीने 4 महीने के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि हालात ही ऐसे हुए थे। लेकिन उन 5 महीने 4 महीने में सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, खाली हमसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, हमसे बैंक अकाउंट नंबर मांगे गए, और भी कुछ जो दस्तावेज़ है, कागजी दस्तावेज़ है, वो हमसे मांगे गए, लेकिन आज तक जो है कोई रिलीफ इनको नहीं दिया गया है। लेकिन अब इनकी ये डिमांड है कि हर एक के लिए जो है कुछ ना कुछ रिलीफ तो दिया गया, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मज़दूर हो, या और कोई बिज़नेस वाला है जिसको सरकार की तरफ से एक रिलीफ पैकेज जो है थोड़ा सा दिया गया। और इनकी अब ये डिमांड है कि हमारे लिए भी एक थोड़ा सा रिलीफ पैकेज दिया जाए, ताकि जो एक गरीब जो तबका है, जो ड्राइवर हजरात है, वो भी अपने बच्चों का पेट पाले, और वो भी जो बाकी जो काम है उनके ऊपर ध्यान दे, ताकि वो फाका कशी पे मजबूर ना हो, ताकि वो किसी भी इस इक़दाम पे ना जाए जिससे कल जो पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार पे आयद होगी। कश्मीर क्राउन के लिए मैं सलीम कादरी, सोपोर से। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th-12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.